Okay, so hello everyone. Today's topic is muscular dystrophy. Muscular is related to muscle, and this means difficulty, whereas trophy means growing. And we know in this disease, it is difficulty of growing muscles. Okay, so what is muscular dystrophy? It is a group of familial disorder that cause degeneration of skeletal muscle fibers. ये एक डिसीज नहीं होती, ये ग्रुप ऑफ फेमिलियल डिसऑर्डर्स होता है जो डीजनरेट करती है स्केलेटल मसल को. ये ओवर टाइम प्रोग्रेसिव होती है. आगे देखते हैं. इट कॉजेस प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड लॉस. धीरे धीरे बढ़ती रहती है, मसल वीकनेस होती है, मसल का लॉस होता है जिसे एट्रोफी भी बोलते हैं. इट इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज अकर बाय changes in the genes responsible for the structure and functioning of a person's muscle. ये एक inherited disease है जो कि फैमिली टू फैमिली पास ऑन होती है. ठीक है, और ये होता है जब म्यूटेशन होता है जीन में जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शनिंग ऑफ पर्सन's मसल. सो डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वेरी इन टर्म ऑफ व्हेन सिम्टम्स स्टार्ट, whether in infancy, childhood or adulthood, or whom they affect, man, women or both, and which muscle they affect and what their symptoms are. So किस टाइप का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा. Now we are looking into some types of muscular dystrophy. So muscular dystrophy, one is Duchenne muscular dystrophy, which is the severe one. Becker muscular dystrophy, which is milder form of Duchenne. Myotonic muscular dystrophy. हम इन तीनों के बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. Facioscapular muscular dystrophy. As the name is referring, facio for face, scapular for around the shoulder borders, and humeral is related to upper arms. So the symptoms occur in these places majorly. Okay. It often appears first in the eyes and then the mouth. It most commonly occurs in teens. वैसे ये adults में भी up to age 40 तक present होते हैं, but mostly teenager age में होता है. और ये life threatening condition नहीं है और ये progress होता है but comparatively धीरे होता है. Other type is limb girdle muscular dystrophy. It affects both males and females, usually once they reach adolescence or young adulthood. ठीक है, इसमें progression can be quick or slow. Most people with this condition become severely disabled because of the muscle damage and some of the subtypes affecting muscle of the heart and muscle used for breathing. Okay, so limb girdle muscular dystrophy usually manifest in the proximal muscles. मतलब मेनली वो proximal muscles में देखने को मिलते हैं. ठीक है, around hips and shoulder. And what is proximal muscle? Proximal muscle is the muscles which are closest to the center of the body. Distal में भी होते हैं but mostly वहाँ से start होते हैं और mostly proximal muscles में देखने को मिलता है. Limb girdle is consist of two girdles, shoulder and pelvic girdle. Okay, so shoulder girdles are bony structures that surround the shoulder area, and pelvic girdle is the bony structure surrounding the hips. Okay, so what are the symptoms? Weakness and atrophy of the limb girdle muscle. ठीक है, limb girdle muscle जो हमने अभी देखे, shoulder girdle और pelvic girdle, उसमें weakness और atrophy. ठीक है, इंडिविजुअल को पहले क्या नोटिस होता है? उनको नोटिस होता है प्रॉब्लम विथ व्हेन दे बिगिन टू वॉक. उनको वॉडलिंग गेट देखने को मिलता है. वॉडलिंग गेट कैसी गेट होती है? डक लाइक गेट. ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि उनकी वीकनेस होती है अराउंड हिप्स एंड लेग मसल्स एज वी सीन पेल्विक गर्डल इज इन्वॉल्व. ओके, सो दे हैव डिफिकल्टी इन डेली एक्टिविटीज लाइक गेटिंग आउट ऑफ चेयर, क्लाइंबिंग स्टेयर्स. इन चीज़ों में दिक्कत आने लगती है. ठीक है, प्रोग्रेसिवली उन्हें असिस्टिव मोबिलिटी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है टू ओवरकम दीज चैलेंजेस. देन वीकनेस इन शोल्डर एरिया उन्हें लगता है जो अफेक्ट करता है. हम आर्म्स को आउटस्ट्रेच मतलब बाहर की तरफ ऐसे खींच के रखेंगे तब दर्द होने लगता है. भारी चीज़ उठाते हैं तो उठती नहीं है. मतलब शोल्डर को हम ओवर द हेड ले जाते हैं जैसे कि कॉम करने के लिए, तब हमें दिक्कत आती है. और किसी किसी को खाना खाने में भी दिक्कत आती है.
ठीक है। द फोर्थ टाइप इज एम्ब्रीट्रोफिकस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें प्राइमरीली अफेक्ट होती है मसल्स यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड द हार्ट, कॉजिंग मसल वीकनेस एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, मूवमेंट अफेक्टेड है मीन्स मसल वीकनेस, स्केलेटल मसल वीकनेस, हार्ट प्रॉब्लम्स भी होंगी, क्योंकि वैसे तो सब में होती हैं बट इट डिपेंड्स कि प्रोग्रेशन कैसा है, सीवियर है, क्या है। बट एम्ब्रीट्रोफिकस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये काफ़ी देखने को मिलता है कि हार्ट मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है, विच आर अमॉन्ग द अर्लीस्ट फीचर्स। तो कॉन्ट्रैक्चर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एल्बो जॉइंट, जॉइंट ऑफ द नेक, एंकल एंड हील्स। ठीक है, मस्कुलर वीकनेस एंड एट्रोफी यूजुअली स्टार्ट्स इन द शोल्डर, अपर आर्म्स एंड काफ मसल। अमॉन्ग डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स, कोई सी भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, बट इनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक हार्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है कंडक्शन ब्लॉक। कंडक्शन ब्लॉक क्या होता है? इसमें रिदम ऑफ द हार्ट बीट इज डिस्टरप्टेड। जो रिदम होती है हार्ट बीट की वो उसमें प्रॉब्लम आती है। रीज़न क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते बिटवीन द हार्ट के अपर एंड लोअर चैम्बर में, विच अल्टीमेटली लीड्स टू, और जब ऐसा होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, फेंट, इंसान बेहोश हो जाएगा, और कभी कभी ऑन स्पॉट कार्डियक अरेस्ट भी होता है। जो दूसरे टाइप के, मतलब और भी हैं टाइप्स बट ये इतने देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो है डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो ग्रुप होता है रेयर डिजीज़ का, जो अफेक्ट करता है डिस्टल मसल्स को, जैसे कि फोर आर्म्स, हैंड्स, लोअर लेग्स एंड फीट। जैसे हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल मसल्स जो कि सेंटर ऑफ द बॉडी की तरफ मसल्स थे, ये है डिस्टल। डिस्टल इज बॉडी से थोड़ा दूर। ठीक है, थोड़ा दूर एज इन मतलब दूर, मतलब प्रॉक्सिमल, डिस्टल। डिस्टल में आते हैं फोर आर्म आ गए, हैंड्स आ गया, लोअर लेग्स आए, फीट है। ठीक है, लेस सीवियर है, प्रोग्रेस काफ़ी स्लोली करता है दूसरे फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, बट ये स्प्रेड कर सकता है दूसरे मसल्स में। अनदर वन इज ऑक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। वी नो ऑक्यूलो इज रिलेटेड टू आइज, फेरेंजियल इज यूज्ड फॉर फेरिंग्स। ओके, सो आइज में क्या होता है? ड्रूपिंग आईलेट्स इन देयर विजन प्रॉब्लम, एंड फेरिंग्स में स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स आती है। अदर जो प्रॉब्लम है वो है मसल वेस्टिंग, विच कॉजेज मसल इन द नेक, शोल्डर एंड लिम्स की अट्रॉफी। ठीक है, और ये यूजुअली 40s और 50s में होता है। ओके, एंड अदर वन इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्ट्रॉफी इन अडल्ट्स। बहुत मेजरली अडल्ट्स में पाया जाता है, बट अगेन वी कांट से किसी पे भी हो सकता है। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें सस्टेन्ड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अगर आप हाथ भी मिलाओ, जैसे अगर आप हाथ मिला रहे हो जिसको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, तो उसको बहुत डिफिकल्टी होगी आपका हैंड ग्रिप छोड़ने में, क्योंकि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जब ब्रेन से सिग्नल आते हैं तो वो धीरे धीरे काम होते हैं और फिर आपका हाथ छोड़ते हैं, तो लाइक सस्टेन्ड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, इनके फीचर्स जो हैं वो होता है एक प्रोमिनेंट फोरहेड, नैरो फेस, baldness is गंजापन, cataract in eyes, and poorly developed chin. Okay, so which we see most commonly and which is very severe is known as Duchenne muscular dystrophy. Okay, so this is X-linked inherited disease. What is X-linked? X-linked means कि इसकी women carrier होती है। We know कि women XX क्रोमोसोम्स होते हैं विमेन में। ओके, सो मोस्टली विमेन को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर एक क्रोमोसोम अफेक्टेड भी है विच इज़ एक्स, उसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये इतना विमेन को अफेक्ट नहीं करता, वो मोस्टली कैरियर्स होती हैं। बट वेयर्स मैन में XY होता है, एंड इफ एक्स इज अफेक्टेड दे डोंट हैव अदर एक्स क्रोमोसोम, सो मोस्ट कॉमनली जो मेल्स अफेक्ट होते हैं इससे। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है, बहुत सीवियर होता है, क्लिनिकली मैनिफेस्ट कर देते हैं इसको एज ऑफ 5 ईयर्स तक। मतलब 5 ईयर्स तक आपको सारे सिम्टम्स और ये सब आने लगते हैं, और बाय द एज ऑफ 10 to 12
जो चाइल्ड होता है वो व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है, ठीक है। जो बेकर्स है वो ड्यूशने का माइल्डर फॉर्म है, ठीक है। ये भी एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें जो XP21 विच इज़ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, वो उसका डिलीशन हो जाता है, ठीक है। इसमें भी अपना डिस्ट्रोफिन में ही दिक्कत आता है। डिस्ट्रोफिन रिस्पॉन्सिबल होता है मसल की स्ट्रेंथनिंग और इन सब के लिए, वो प्रोटीन मसल फाइबर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। और अगर वही अफेक्टेड है तो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। और जो ड्यूशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इसमें लाइफ स्पैन काफ़ी लिमिटेड होती है, काफ़ी कम होती है। वेयर्स एंड बेकर्स लाइफ स्पैन उतनी छोटी नहीं होती जितनी DMD में होती है, और प्रोग्रेशन भी कंपैरेटिवली स्लो होता है, ठीक है। बट ड्यूशने में प्रोग्रेशन इज फास्ट, ओके। सो बाय द एज ऑफ 10 to 12 चाइल्ड बिकम व्हीलचेयर बाउंड, फाइन। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या एसोसिएटेड होते हैं, ये सारे सिम्टम्स हमें ड्यूशने बेकर्स में भी देखने को मिलेंगे, बट इट्स जस्ट कि माइल्डर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ड्यूशने में सिम्टम्स एसोसिएटेड है मसल का डिजेनरेशन होता है, और हमें मोस्टली देखने को मिलता है थिन वीक थाइज, ठीक है। जो थाइज होती है वो काफ़ी पतली होती हैं, जिसकी आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाओ, ठीक है। और जो इनकी काफ्स होती हैं वो काफ़ी मतलब जैसे थाइज वीक थिन है, ठीक है, और काफ्स इनकी काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, उनमें सूडो हाइपरट्रॉफी होती है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे मसल है, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे फैट डिपोजिशन है, कि मसल तो उनकी प्रोटीन काम ही नहीं कर रहा है, तो वो फॉल्टी मसल्स बन रही हैं उधर, ठीक है। अनदर वन फीचर इज वीक स्टमक मसल्स होती हैं वो वीक होती है, विच लीड्स टू प्रोट्रूजन ऑफ स्टमक आउटवर्ड। सी हियर दिस स्टमक यहाँ पे ऐसे प्रोट्रूडेड होता है, ठीक है, क्योंकि मसल्स आर वीक। तो ये पॉस्चर को कंपनसेट करने के लिए हमें स्वे बैक देखने को मिलता है, ठीक है। जो शोल्डर एंड आर्म्स होती हैं वो बैकवर्ड चली जाती हैं, ठीक है। तो इन सबको कंपनसेट करने के लिए पॉस्चर भी स्वे बैक हो जाता है। तो मोस्टली इनमें स्कोलियोसिस भी देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म से इनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, ठीक है। और जो ग्लूट्स मसल होती है वो भी काफ़ी वीक होती है, ठीक है। एक बार आप देख लो। थिक कैप्स मसल की हमने बात कर ही ली थी, ठीक है। जो एक्लीस टेंडन मोस्टली टाइट होती है, ठीक है, टाइट फाउंड होती है। बैलेंस काफ़ी पुअर होता है, क्लमजी वॉक होती है, बार बार गिरते हैं, ठीक है। ऑकवर्ड वॉकिंग गेट हो जाता है, मोस्टली वॉडलिंग गेट इज सीन, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग मसल फाइबर्स, ओके। एंड लाइक प्रोग्रेसिवली अफेक्ट करती हैं सारे मसल्स को, और व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और इसमें मसल्स काफ़ी सीवियरली अफेक्ट होती हैं, और रेस्पिरेटरी मसल्स, कार्डिक मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जो इसमें मेन डेथ का कारण होता है लास्ट में, वो यही होता है कि रेस्पिरेटरी मसल फेलियर हो जाता है या फिर कार्डिक मसल फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो स्कोलियोसिस भी हमने बोला था, और डिस्ट्रोफिन हार्ट मसल्स में भी होता है। दैट्स वाई हार्ट की प्रॉब्लम्स जैसे अरिथमिया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज सीन, ठीक है। और एक साइन होता है जो कि काफ़ी हमसे प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, विच इज़ गावर्स साइन। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे को हम ऐसे लिटाएंगे फ्लैट ऑन द स्टमक, हमने उल्टा लिटाया है, तो जब भी वो खड़े होने की कोशिश करेगा तो वो अपने आर्म्स को यूज़ करेगा खड़े होने के लिए, ठीक है। वो सीधे नहीं खड़े होगा, वो अपने घुटने पकड़ेगा, धीरे धीरे खड़ा होगा, विच इज़ वेरी पिक्यूलियर। लाइक उसको आप देख के पहचान जाओगे कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है। और इसका रीज़न क्या होता है?
वीक मसल ऑफ हिप्स एंड अपर लेग और हिप्स के मसल वीक होते हैं, ठीक है। एंड एज आई सेड, DMDs की कॉम्प्लिकेशन अल्टीमेटली लीड्स टू शॉर्टेंड लाइफ स्पैन, लाइक अराउंड 20 ईयर्स तक की एज तक। सो इनमें मेडिसिन तो इतना कुछ काम नहीं करता है, तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोथेरेपी का ही रोल होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। हमारे एम क्या होते हैं? हमारे एम्स होते हैं कि हम बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग या जितना भी जो भी अफेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग हम उनको कंपनसेटरी मैकेनिज्म सिखाएं, ठीक है, ताकि वो अपने एडियल्स इंडिपेंडेंटली जब तक कर सकता है तब तक करें, ठीक है। मेंटेनिंग द स्किल्स एज बीइंग अ प्रोग्रेसिव डिसीज, MD कॉजेज द स्किल्स टू लूजन। वही बात है कि हम जो भी वो उनके पास स्किल्स हैं, अभी जो भी स्किल्स परसिस्ट कर रहे हैं, चल पा रहे हैं या फिर कुछ, तो उसमें ही हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करवाएं ताकि वो मेंटेन हो सके जब तक हो सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली वी नो कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, ठीक है। अगर जैसे वो चल नहीं, मतलब उनको असिस्टिव डिवाइस की नीड है, तो हम असिस्टिव डिवाइस दे के उन्हें चलवाएंगे, खाना खिलवाएंगे, वॉक करवाएंगे, ठीक है। और बेस्ड ऑन द मसल वीकनेस मोस्टली द ट्रीटमेंट इज डिज़ाइन, ठीक है। जैसे बच्चा चल सकता है बट उसका असिस्टिव डिवाइस की नीड है, तो हम मोस्टली उसको बॉल देते हैं फुटबॉल की, उससे आप खेलो, उसको थ्रो करो। ये अलाउ करता है शिफ्ट द वेट एंड इट ब्रिंग्स अ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और उनके पेरेंट्स को भी काफ़ी खुशी मिलती है क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें पता है कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है और जितना लंबा हो सके उतना वो खुद के पैरों में चले, खुद के काम करे। हमारा यही मेन एम होता है। द ट्रीटमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द मसल ग्रुप। कौन सा मसल ग्रुप वीक है या टाइट है उसको हम अकॉर्डिंगली स्ट्रेच या स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। तो हमें अपर लिम्स लोअर लिम्स के सारे मूवमेंट्स करवाने होते हैं। 15 to 20 रिपीटेशंस एक्टिवली पेशेंट कर सकते हैं, तो एक्टिवली असिस्टेड चाहिए तो असिस्ट करेंगे, वरना पैसिवली करेंगे। बट सारे मूवमेंट्स करेंगे और क्या बोलते हैं, सारे मूवमेंट्स करेंगे ताकि उनकी हेल्दी ब्लड सप्लाई बनी रहे, ठीक है। और हम मोस्टली ये ऐसा प्रोटोकॉल सेट करेंगे कि वो बच्चा एक्टिविटी करेगा ऑन हिज ओन, ठीक है। अगर असिस्टिव डिवाइसेस की नीड है तो हम असिस्टिव डिवाइस के साथ यूज़ करेंगे और उसको अल्टीमेटली एक्टिविटीज़ प्रोग्रेस करवाएंगे, ठीक है। मोस्टली हम बैलेंसिंग एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी में फोकस करेंगे। अगर वो अच्छे से नहीं कर पा रहे, कंपनसेटरी हम उन्हें सिखाएंगे, बट हम उन्हें सिखाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमारा यही गोल है कि उसके पास जितना भी एबिलिटी है, जितनी भी स्किल्स हैं, हम उसको परसिस्ट कर सके एज लॉन्ग एज पॉसिबल। एंड अगर वो असिस्टिव डिवाइस की मदद से या फिर कैसे भी एक्टिविटी कर सकते हैं तो हम उसको करवाएंगे, ठीक है। तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं जिम्निक बॉल, वो जो बड़ी सी बॉल होती है, ठीक है। उसमें बच्चे को लिटा के हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। एब्डोमिनल की एक्टिविटी करवाते हैं या फिर आगे बच्चे को रोल करवाते हैं, ठीक है, ताकि इससे उसको अपनी बॉडी का प्रोप्रियोसेप्शन पता चले कि हाँ ठीक है मेरी बॉडी ऐसे वर्क करती है, ठीक है, और उसकी खुद की स्ट्रेंथ लगे। सो बैलेंसिंग बोर्ड यूज़ करते हैं हम, अलग अलग हर्डल्स उनके बीच में रख सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं कि चल के आओ, ये चीज़ हमें दो, इसको वहाँ रखो, ठीक है। स्ट्रेचिंग करते हैं जॉइंट्स की, हमें स्ट्रेचिंग विद इन लिमिट करना है। स्ट्रेचिंग शुड नॉट बी पेनफुल, ठीक है, और स्ट्रेचिंग शुड बी 5 to 10 रिपीटेशंस। हमें 5 to 10 रिपीटेशंस करवानी है स्ट्रेचिंग की। एंड मोस्टली हम अलग अलग मसल्स को टारगेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ नीडेड मच, जैसे अक्लीज टेंडन, हैमस्ट्रिंग, पायरिफॉर्मिस, ऑल इन सबकी स्ट्रेचिंग, ठीक है। सब जॉइंट्स की मूवमेंट हम करवाएंगे, मैंने जैसे बोला था, ठीक है, जिसमें सारी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो। नी में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फुल हिप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, पूरा रोटेशन, एंकल का डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इवर्जन, इन्वर्जन, ओके।
ये बात हो गई। और फिर पेल्विक लिफ्टिंग, ब्रिजिंग, नीलिंग, सिटअप्स, पूरी हमें मसल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करना है बॉडी की, ठीक है। और हम रादर देन फोकसिंग ऑन एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, हमें उन बच्चों की तरफ एम्पैथेटिक होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली ये प्रोग्रेसिव है एंड लाइक जो बच्चा कर रहा है वो काफ़ी मतलब अपनी बियॉन्ड लिमिट तक जा रहा है, तो हमें उनकी तरफ एम्पैथेटिक होना चाहिए, उनकी फैमिली की तरफ एम्पैथेटिक होना चाहिए। उनकी फैमिली को किसी भी गलत उसमें नहीं रखना चाहिए। जो कंडीशन है, जैसी कंडीशन है उसके बारे में फुली हमें बताना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। और ऐसे हम उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो पेशेंट भी मोटिवेटेड रहता है, उनके पेरेंट्स भी मोटिवेटेड रहते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। एंड हमारा अल्टीमेटली गोल यही होता है कि हम जब तक हो सके उनकी एक्टिविटीज़ को करवाएं इंडिपेंडेंटली। व्हीलचेयर ट्रेनिंग और ये सब भी हमें ही सिखाना होता है। फाइन, सो दिस वाज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। थैंक यू।